Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. Today we're gonna talk about the phrasal verb related to traveling. Everybody loves traveling. I also love traveling. I love to go to the other cities and different countries and exploring the different monuments and exploring the different cities. So if you are planning to go to other country and exploring the different cities and something else like this, so I'm 100% sure that this lesson will be very helpful for you. So I know that everybody knows different terms related to traveling. Just like I am going to Barcelona, I am going to Paris, I am going to this where. So in this lesson, I will tell you some advanced phrasal verb to improve your vocabulary. So let's start our lesson. Our first phrasal verb is see off. Suppose if one of your friend he is planning to go to the other country and to the other city, so what would you do? Obviously if you are a good friend and you want to say him goodbye, तो आप उसके साथ जाएंगे, उसके पास जाएंगे, या तो एयरपोर्ट जाएंगे, या फिर ट्रेन स्टेशन जाएंगे, या फिर उसके घर जाएंगे उसे बाय कहने के लिए. तो जब किसी को बाय कहने के लिए आप उसके पास जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑफ. Say goodbye to someone. See off means if you want to say goodbye to someone, so it means see off. See is a verb. So phrasal verb. What is phrasal verb? Phrasal verb is actually the combination of verb and preposition. See is a verb and off is preposition. If we combine verb and preposition together, it becomes phrasal verb. So our first phrasal verb is see off. Say goodbye to someone. I saw my friend off at the airport. One of my friend he is going to the other country or to the other city. So मैं उसे वहाँ पे गया था एयरपोर्ट पे see off करने के लिए, goodbye कहने के लिए. Our next phrasal verb is set out. हम लोगों ने कहीं जाना होता है, हम लोग पहले प्लान करते हैं कि ठीक है हम लोगों ने इतने बजे घर से निकलना है. सपोज हमारी अगर फ्लाइट है 12 o'clock की, तो हमारी ट्राई होगी कि हम घर से 8 और 9 o'clock हम लोग निकलें ताकि हम लोग टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएं. तो जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट आउट. टू स्टार्ट और बिगन अ जर्नी. जैसे ही जिस तरह अब एयरपोर्ट पे अगर आपका प्लेन का टाइम है 12 o'clock का और आपकी जर्नी 8 o'clock स्टार्ट होती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी जर्नी 12 o'clock स्टार्ट हो रही है या यू सेट आउट एट 12 o'clock. आप क्या कहेंगे? आई सेट आउट एट 8 o'clock. शी सेट आउट फॉर द जर्नी एट नाइट. उसने अपनी जर्नी रात को स्टार्ट की. सेट आउट मीन्स टू स्टार्ट और बिगन अ जर्नी. Our third phrasal verb is drop off. If your friend or some family member is going to somewhere और आपने उसे लेके जाना है अपनी कार में, if you have a car or some other vehicle, तो आप क्या करेंगे? आप उसे वहाँ पे अगर ड्रॉप करेंगे to take him to his place, to his or her place and drop him off to somewhere, just like airport or train station or bus stop. तो उसे वहाँ पे लेके जाना और खुद वापस आ जाना, उसे क्या कहेंगे? ड्रॉप ऑफ करना. अपने फ्रेंड को या किसी को भी ड्रॉप ऑफ करना. टेक समवन टू अ प्लेस एंड यू विल लीव दैट प्लेस. यू विल नॉट ज्वाइन इन टू द जर्नी. सो आप क्या कहेंगे? टेक समवन टू अ प्लेस. I dropped him off at the train station. I dropped him off. मैंने उसे ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप किया. I dropped him off at the train station. Our fourth verb is take off. Take off. एक तो मीनिंग अगर हम लोग इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं. एक तो टेक ऑफ ये है कि आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, इट्स हॉट आउटसाइड, सो मैंने अपने कपड़े उतार दिए. तो एक टेक ऑफ उस मीनिंग में भी यूज होता है. लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग तो इसका मीनिंग डिफरेंट है. इसका मीनिंग ये है कि आपका प्लेन जो है वो अपनी जगह छोड़ रहा है, यानी कि वो उड़ने के लिए तैयार है और वो उड़ रहा है. सो प्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एंड फ्लू अवे. प्लेन ने एयरपोर्ट को छोड़ दिया एंड फ्लू अवे. जस्ट लाइक प्लेन ऐसे है और अगर वो ऐसे जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लेन इज रेडी टू टेक ऑफ. द प्लेन टूक ऑफ एट 11 o'clock. प्लेन ने 11 बजे उड़ना स्टार्ट किया. गेट ऑन. गेट ऑन. टू एंटर द प्लेन, बस एंड ट्रेन.
अगर आप प्लेन में गेट ऑन मीन्स आपने प्लेन में, बस में या ट्रेन में एंटर हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, गेट ऑन, गेट ऑन। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने बस, ट्रेन और प्लेन का जिक्र करना है तो उसमें क्या होगा, गेट ऑन। इफ वी वांट टू टॉक अबाउट कार और टैक्सी, देन वी डोंट यूज द गेट ऑन, देन वी यूज द गेट इन, गेट इन, गेट ऑन द बस। और अगर इफ यू वांट टू से इन द कार तो हम लोग क्या कहेंगे, गेट इन द कार और टैक्सी। लेट्स मूव टू द अदर फ्रेजल वर्ब्स। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज गेट ऑफ। गेट ऑफ का क्या मतलब है, गेट ऑफ का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज छोड़ दी है, टू एग्जिट समथिंग और टू गेट आउट फ्रॉम वन प्लेस, टू गेट आउट और एग्जिट द प्लेन, ट्रेन और बस, एनीथिंग एल्स। He got off the train by 10 o'clock. उसने, अब get in का क्या मतलब है, get on, and get in का क्या मतलब है, to enter the bus, train and anything else. And get off का क्या meaning है, to get out the thing, to get out, to exit. So opposite है get in and get off. Our seventh expression is check in. एयरपोर्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे अगर फ्लाइट का टाइम है 12 ओ क्लॉक का, हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं 9 ओ क्लॉक और हमारा चेक इन का टाइम होता है एट 10 ओ क्लॉक। तो हमने उस टाइम पे अपना लगेज वगैरह वहाँ पे सबमिट करवाना होता है, टिकट चेक वगैरह करवानी होती है। तो अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, टू अराइव समवेयर एल्स, टू अराइव एट द एयरपोर्ट एंड रजिस्टर एट द एयरपोर्ट, हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया फॉर द फ्लाइट, तो हम क्या कहेंगे, हम लोगों ने चेक इन कराया। चेक इन क्या होता है, आप एयरपोर्ट पे गए हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे पहुंचे, अपने आप को रजिस्टर करवाया, सो व्हाट इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड चेक इन, चेक इन करना। हम इसे होटल के टर्म में भी यूज कर सकते हैं कि आप होटल में जाते हैं, ठीक है, किसी भी होटल में, रिजॉर्ट में जाते हैं, तो वहां पे आपने जाके फ्रंट डेस्क पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड चेक इन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक इन बाय 6 ओ क्लॉक। आपकी फ्लाइट अगर 9 ओ क्लॉक की है तो प्लीज अपने आप को चेक इन करवाना ना भूलना एट 6 ओ क्लॉक। आई यूज्ड इट इन टर्म ऑफ एयरपोर्ट, okay, and this is another example of this. When you arrive at the hotel, please check in at the front desk. When you arrive at the hotel, please check in at the front desk. फ्रंट डेस्क पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाना, उन्हें सबमिट करवाना, ठीक है, जब वो अपने आपको रजिस्टर कर लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, चेक इन। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज चेक आउट। इट इज द ऑपोजिट ऑफ चेक इन। चेक इन क्या है, चेक इन ये है अपने आप को रजिस्टर करवाना, टू अराइव समवेयर एंड टू रजिस्टर योरसेल्फ। चेक आउट इसका ऑपोजिट है कि जब आपने लीव करना है उस जगह को, लीव दैट प्लेस एंड पे बैक द मनी, उन्हें पैसे दे दिए और उस जगह को छोड़ दिया, तो इट्स कॉल्ड चेक आउट। आई विल चेक आउट एट 11 AM। किसी भी होटल में जाते हैं, किसी भी रिजॉर्ट में जाते हैं, अगर उनका चेक इन टाइम है 3 ओ क्लॉक का, तो in most of the hotel and resort the checkout time is usually at 10 or 11 o'clock. You have to check out, you have to leave that place by 11 o'clock and you have to pay the money. So I will check out at 11 o'clock. मैं 11 o'clock उस जगह को छोड़ दूंगा। पिक अप, आप किसी और कंट्री में जाते हैं, किसी और सिटी में जाते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो रेडी होते हैं आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए, ठीक है, आपकी फ्लाइट लैंड होती है वहाँ पे, आपने अपने आप को, ठीक है, वहाँ पे निकलते निकलते लगेज लेके आपको हाफ एन आवर लग जाता है, तो बाहर आप देखते हैं आपके फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, अपनी कार में आए हैं, तो वो जब आपको वहाँ से लेने आते हैं और किसी और जगह पे ड्रॉप करते हैं, सो इट्स कॉल्ड पिकअप। पिकअप करना, उस आपने आपको पिकअप करना, या अगर आपके घर कोई आता है, ठीक है, आपने उसे वहाँ आपने किसी भी एयरपोर्ट पे जाना, किसी भी स्टेशन पे जाना या कहीं से भी उसे लेके आना, तो इट्स कॉल्ड पिकअप। गेट समवन फ्रॉम द प्लेस एंड टेक हिम और हर समवेयर, ठीक है, गेट समवन फ्रॉम द प्लेस, उसको उस जगह से लिया, ठीक है, और किसी और जगह पे उसे ड्रॉप कर दिया और किसी और जगह पे लेके चले गए, सो इट्स कॉल्ड पिकअप। पिक मी अप एट नाइट, पिक मी अप, आई हैव अ प्लान टू गो टू द अदर कंट्री, तो मैंने अपनी फ्लाइट से पहले वहां पहुंचना है, तो
मैं अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली मेंबर को क्या कहूँगी कि प्लीज़ पिक मी अप एट नाइट बिकॉज माई फ्लाइट इज़ एट ओके 12 o'clock और एट नाइट एट 2 o'clock, तो मुझे रात को पिक कर लेना ताकि मैं वहाँ पे टाइम से पहुँच जाऊँ. He picked me up after I get off the plane. He picked me up. इसमें दो फ्रेज यूज हुए हैं, pick me up, this one, and get off the plane, this one. He picked me up. उसने मुझे पिक किया या उसने मुझे वहां से ले लिया जैसे ही मैं प्लेन से उतरा या मैंने जैसे ही प्लेन को छोड़ा. So he picked me up, this phrase, and I get off the plane, this one. इस सेंटेंस में दो फ्रेजेस यूज हो गए हैं. मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा आफ्टर आई लीव द प्लेन, मैंने उसकी जगह एडवांस वर्ब यूज किया है. सो आई सेड आई get off the plane. So in today's lesson I taught you many advanced phrases related to traveling. So what I want from you, I want from you to practice this phrasal verb in your daily conversation, in your common conversation जो आप अपने फ्रेंड के साथ करते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ करते हैं, तो उनमें इन फ्रेजेस को यूज करें, इन एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपके माइंड को पता चलेगा कि हम लोगों ने गो, लीव, दिस प्लेसेस, दिस वर्ड्स को यूज करने के बजाय हम लोगों ने एडवांस फ्रेजेस को यूज करना है. क्योंकि नेटिव पीपल जो है वो आई गो टू दिस प्लेस, आई विल गो टू दिस प्लेस, वो ये वर्ब्स यूज नहीं करते, वो ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं और उनके लिए बड़ा कॉमन है ये सारा कुछ याद करना क्योंकि ये सारा कुछ उनकी मेमोरी में ऑलरेडी होता है. तो उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, लेकिन हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए इनकी. सो इफ यू वांट टू लर्न सम अदर एडवांस फ्रेजल वर्ब, प्लीज like and subscribe my channel. Thank you so much.